जैसे कि आप सबको पता है कि बिजनेस अगर शुरू करना है तो मुर्गी पहले कि अंडा पहले, ये हमेशा का हमारा सवाल है कि पैसे की पहले जरूरत है या हमारी बिजनेस के आइडिया की पहले जरूरत है। और ये हमेशा से वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा हुआ है कि मतलब बहुत सारा पैसा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन हैव डिफरेंट आइडियाज इन आवर माइंड, और vice versa, if we can select a good idea, then we can go for a fund. So we are really having a very good and dynamic faculty with us today. श्री चक्रधर दुड़के सर, जो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही पॉपुलर पर्सन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फील्ड में। सर एमएसएमई जो है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट के सेक्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और सर का मैं अल्प परिचय आपको करा देता हूं। CS दोड़के सर, he was former assistant director government of India, Ministry of MSME, and now he is retired. Before retirement he worked in MSME development organization about 30 years for entrepreneurship development project, established industrial management development, export promotion, and implemented various government loan schemes in various states of India. And after retirement, he is working as freelancer consultant in the field of business establishment, cluster development. क्लस्टर डेवलपमेंट आपको पता है कि किसी एक बिजनेस के क्लस्टर्स एक एरियाज में तैयार होते हैं, उनको डेवलप करते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें सर फैसिलिटेटर है। एंड अदर एमएसएमई डेवलपमेंटल असिस्टेंस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। he has visited abroad, England, Edinburgh, Bolton, London, United Kingdom, and delivered speeches in various engineering management institutions, government organizations on entrepreneurship development, entrepreneurial personality, financial, and Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Speeches telecasted in different channels and Doordarshan also. So, सर का वास्ट एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है, सर हमारे स्टूडेंट्स भी है ना इस बार मैनेजमेंट और रूरल बैकग्राउंड के मिक्स है, तो आपका जो स्पीच है वो भी इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड रहने दीजिए ताकि हमारे सारे बच्चे उसको समझ पाए। तो मैं सर को फिर से एक बार यहाँ स्वागत करता हूँ सर का, और सर से निवेदन करता हूँ कि सर आज का सेशन की शुरुआत करें। दुड़के सर प्लीज। Okay. Thank you very much, Dr. Ajay Talekar sir or Dr. Parekh. And at the same time, thanks to Dr. Amishi Arora ma'am for inviting me on this particular occasion to talk on the session called Opportunities Through MSME Schemes. Friends, I welcome you all also on this particular 30-hour student development प्रोग्राम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो जैसे सर ने कहा है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो मैं भी यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों पहले स्टूडेंट डेवलप होना चाहिए और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। तो सबसे पहले अपने आप को डेवलप करो तो ऑटोमेटिक आप एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस भी समझेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लड़के हैं दोस्तों कि जो यंग लड़के हैं कि जो पहले अपने एंटरप्रेन्योरशिप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, धीरे धीरे जो भी उसको काम मिल जाता है वो काम करते हैं एंड एट द सेम टाइम वो लर्न विथ अर्न करते हैं या अर्न विथ लर्न करते हैं। इस वजह से आप इस फॉर्मूले में मत पड़िएगा कि कौन पहले, अंडा पहले कि मुर्गी पहले। पहले आप ये देखिएगा कि व्हाट इज योर स्टेटस। इफ यू वांट समथिंग टू डू इट। if you have enough resources to take your education in a very effectively, then go to the education and don't concentrate here and there. It depends upon the need of the person. So that's why it is very important for you all, my dear friend. Whatever you may be an entrepreneur, or you may be a manager of a very corporate company, or you may be a good teacher, or you may be a good leader in this particular your life. But you must understand at this juncture of time, being the student, that you must know honesty is the best policy. Honesty with you, honesty with your work, honesty with your education, honesty with your everything. You must honest
your each and every work, my dear friend. And hard work is the only key to success. Let me tell you, you are all aware how the entrepreneurship is growing up, how the entrepreneurship is going on. You are not in the wrong boat. If you have selected entrepreneurship as a career, I think you have chosen the best boat to cross your life with a high standard quality life. If you want to achieve, you want to live with a high standard quality life, my dear friend, you are in the right boat of entrepreneurship. Just tell me one thing, my dear friend. Imagine, imagine ऐसी एक दुकान है दोस्तों, जो दुकान आपको दिखाई ही नहीं पड़ती, दुनिया की सबसे बड़ी दुकान, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। ना उस दुकान में कोई प्रोडक्ट्स है, ना दुकान में कोई ऐसे फिजिकली कोई चीजें रखी हुई है, बट ही दिस पर्टिकुलर दुकान अ बिजनेस having no physical existence, and number one in the world, he is the richest man, the owner of the Amazon is the richest personality in the world. Take the example of Google. Google is a टेक्नोलॉजी का क्या कहेंगे आप इसको, एक टेक्नोलॉजी का अजूबा है दोस्तों। क्या क्या है उसके पास, सिर्फ टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी को उसने इस स्तर पर लेके गया है कि जो कभी कभी ईश्वर को भी नहीं मालूम वो बता देता है आपको। जस्ट इट इज द दिस पर्टिकुलर गूगल इज द ईश्वर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है ये गूगल। एंड देयरफॉर डियर फ्रेंड, मैं कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, ये मत देखिएगा कि अब क्या है, अब ये देखिएगा कि फ्यूचर कैसा होगा। तीसरी दुनिया आप जाते हैं तो मोबाइल ले लीजिएगा एप्पल के, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन का एक प्रतीक बन गया है, वो एक एग्जाम्पल बन गया है, एक एग्जाम्पल बन गया है हम लोगों के लिए इनोवेशन के लिए। after every 2 minutes, after every fortnight or week, you get a lot of innovation, lot of changes in the mobile phones. So there are things. Then take the example of Disney. वो सिर्फ बच्चों के लिए ही काम करता है, लेकिन पता नहीं क्या क्या बना के रखा है उन्होंने बच्चों के लिए। कभी वीडियोस बनाते रखता है, कभी आप देखिए ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको मैं एक्सपोजर दे रहा हूँ कि दुनिया ये नहीं देखती कि आप कंटेनर बनाइए, आप स्टेनलेस स्टील के बकेट बनाइए या बॉक्स बनाइए या चेयर बनाइए, ये, लेकिन दुनिया और भी दूसरी तरफ जाने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, आगे बढ़ते दोस्तों, रिलायंस कहां से शुरू किया हुआ धीरूभाई अंबानी जी ने, जो स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी ने एक पेट्रोल पंप से शुरू किया हुआ आदमी आज ये दुनिया देश की सबसे बड़ी कंपनी बन के उभरी है। कोई फील्ड नहीं छोड़ रहा है वो कि जो वहां पे वो एंट्री नहीं करना चाहता है। आप खुद देखिएगा, आज तो जियो एक ऐसी चीज बन चुका है सारे देश के लिए कि हम वो एक पार्ट बन गया है ईच एंड एवरी इंडियंस का। व्हाट आई मीन टू से, टेक द एग्जांपल ऑफ डीमार्ट। अभी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है। कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो बिग बाजार है और भी कई हैं, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि डीमार्ट अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है, व्हाट आई विल डू इट। नो दोस्तों, उसने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है। आज भी कहां, अभी नागपुर का एग्जांपल लीजिएगा, डीमार्ट इज एट हिंगना, यहां से 10 किलोमीटर दूर, लेकिन लोग वहां पे सामान खरीदी करने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर जाते हैं दोस्तों। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप देने वाले बनिएगा और लोग यहाँ पे खरीदी करने वाले बैठे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में यही एक चीज की जरूरत है जो आपको फोकस करनी है। आपको विश्वास होना चाहिए, यू वांट to be believe in you, then only the things will be materialized. ऐसा नहीं है
कि आप ये नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर में, आप भी कर पाओगे इस फ्यूचर में, लेकिन आपको ये देखना होगा दोस्तों वाला। उसके बाद आ जाते हैं अभी जैसे ही चेंजेस हमारी पोस्ट कोविड में ये कोविड में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, हमारा लाइफ चेंज हो गया। आपको आप यकीन कर सकते हैं कि कोई आदमी 6 महीना 7 महीना अपने घर में बैठा बैठा सब कुछ कर रहा है, यकीन कर सकते हैं आप। लेकिन ये इंसान है, इंसान जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसका बदल जाता है। आपने उस एटमॉस्फेयर को समझ के आपने ऐसी कोई चीज उसमें लेके आनी है जिससे आप पैसा कमा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, दिस आर वेरी स्मॉल टिप्स बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू माइट हैव बी अवेयर। बहुत से फैकल्टी ने शायद बताया भी होगा ये सारी चीजों का। तो ये जो चीज है, अब देखिए सिर्फ 3 चीजें हमारे यहाँ चल रही थी उस वक्त जब लॉकडाउन शुरू हुआ 24 मार्च 2020 में। क्या चीजें चल रही थी? एसेंशियल गुड्स, जो किराने की दुकान चल रही थी, एसेंशियल गुड्स में वेजिटेबल्स की दुकान चल रही थी, और सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मेसी चल रही थी, दवाखाने चल रहे थे। लेकिन बहुत से दुकानदारों ने लॉकडाउन में भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, अपने रेडीमेड गारमेंट्स के दुकान को पीछे शिफ्ट करके, सारा माल पीछे शिफ्ट करके आगे किराने की दुकान लगाई है। बहुत से लोगों ने सब्जी भाजी की दुकान लगाई, लेकिन इस लॉकडाउन में भी पैसा कमाया है। बहुत से ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपने ऑटोज में सब्जी भाजी बेची है। बहुत से लोगों ने फ्रूट्स के बिजनेसेस किए हैं इसमें। व्हाट आई मीन टू से, यू मस्ट बी अ अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिटी जहां पर आती है वहां पे आपने ये नहीं देखना है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो जस्ट एंटर इन द फील्ड एंड यू विल गेट समथिंग ग्रेट। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसा ही किसी ने ये जज किया है कि ये भाई ऑनलाइन चलेगा सब, तो आज देखिए कि ये जो बीयूज है, ये जो बीयूज जो इसमें शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट करता है, ये इतना बड़ा आदमी नहीं था। He has started with just 2 lakhs rupees. He has made a software in just 2 lakhs rupees, and now he is earning in crores. There are बेमिसाल 12 कंपनीज है, इंक्लूडिंग BUG, जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को एक ऐसे लेवल पर लेके गए कि आज उस प्लेटफॉर्म को हम वाव कहते हैं। आज भी हम ऑनलाइन टीचिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये फील्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। दिस एंटरप्रेन्योरशिप से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज। Entrepreneurship, it's a challenge. Remember this word. Entrepreneurship is a challenge. It's an ability to pursue the opportunities, and the opportunities which should have a future when you will try to exploit it. ये 3 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चैलेंज है, अगर आप सही भी चल रहे हैं, दूसरे उसमें ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी एबिलिटी बना ली, अपनी एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी बना ली है, तो आपको ये चैलेंजेस बहुत ही आसानी से आप इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी ही, आपकी एबिलिटी ही ये चैलेंजेस को, लोगों के चैलेंजेस को, दिए हुए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती जाएगी और उसको उसी तरीके से उत्तर देती जाएगी, बाउंस बैक करेगी। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ चैलेंज, इट्स एन एबिलिटी टू परस्यू द अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जो आज स्कोप है, थोड़ा बहुत भी स्कोप है आज, लेकिन अगर आप उससे प्यार करते हैं, यू लव टू दैट अपॉर्चुनिटी, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी आई मीन टू से प्रोडक्ट। और वो देखिएगा कि इफ टुडे दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैविंग अ स्कोप वेरी लिटिल बिट, बट इफ ही हैज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर फ्यूचर, इन फ्यूचर, अगर स्कोप है फ्यूचर में और आप अगर उससे प्यार करते हैं तो ही उस फील्ड में आइएगा। अगर आप प्यार नहीं करते हैं लेकिन लॉट ऑफ स्कोप भी अगर है, तो मेरे जैसा एक मेंटर आपको यही कहेगा कि आप ऐसे फील्ड में ना जाए जिस फील्ड से आप प्यार नहीं करते हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री फील्ड, ये मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, ये एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड,
is a field of long going. It's a long journey. It's not a journey of 1 month, 2 months or 6 months. It's a long going journey. So जिस चीज में आप प्यार करते हो दोस्तों, वो चीज आपने एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए, इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। मेरे अपने 30 इयर्स के करियर में मैंने ये देखा है कि बहुत से लड़के हैं कि जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले बनते हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी भी डेवलप करते जाते हैं, क्योंकि इट्स अनएंडिंग। ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि नाउ आई एम फिट, ओके, उसको अर्ज कीजिएगा, उसको अपने पर्सनालिटी में लाइएगा। आपकी जब पर्सनालिटी थ्रू उभर के आ जाते, आपको खुद को फील होता है कि आई एम समथिंग, सम गेन इज देयर। ऐसे वक्त आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसी ढूंढिए जिसका फ्यूचर हो, आपके लिए स्कोप हो, अपने आप को एक्सप्लॉइट करने के लिए। होता यह है कि हम ये सब होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। मालूम क्यों? बिकॉज वी डोंट करेज टू अंडरटेक द टास्क। हम करेज नहीं करते हैं, हम हिम्मत नहीं जुटाते हैं। We don't take the initiative to go ahead. हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और ये सोच के कि बिजनेस प्रोसेस इज अ रिस्क। Of course it is a risk, my dear friend, but if you are taking the moderate calculative risk, you can do a wonder. You must take the moderate calculative risk. बिजनेस को लाखों रुपया चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है। करोड़ों रुपया चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है। माइंडसेट अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर डाइवर्ट होता है और आप क्लियर माइंड से अगर जाते हैं, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी विड्रॉ। दोस्तों, डिफिकल्टी ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जहां पे डिफिकल्टी नहीं है। स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हुए मैंने देखा है, बट दिस इज नॉट गुड और अलाउड इन 21st century. 21st century asks that whatever the work you are doing, you must understand first what is this task, what is the current position of this task, and what this task will give me in future. What this task will give me in future. And therefore, my dear friend, before going to the any industry, any product, you must understand first what is the task. डिफिकल्टी विड्रॉ अगर ये आपकी हैबिट है, तो मैं कहूंगा कि दिस हैबिट इज अ वेरी डेंजरस टू योर लाइफ। नाउ दिस पर्टिकुलर करके तो देखता हूं, करके तो ये करता हूं, दिस विल शुड नॉट बी good for your life in this 21st century.